Hello and welcome to Truth versus Hype. At the end of a week when high prices of ordinary food staples remained worryingly high, particularly the prices of dal and tomatoes, the government was, as always, quick to blame poor weather for the crisis. But as our investigation found, and we shall see this over the next 30 minutes, the reality is much more complex. The government's own data shows a glut, not a shortage of tomatoes in the market. So why are prices rising? As for dal, is the shortage because of drought or a drought of policy decisions? The country's food minister joins us as well to take tough questions on the many myths surrounding high prices, starting with the paradox of the tomato. बहुत ही महंगा हो गया, ज़्यादा महंगा हो गया, इतना गरीब तो अपन ले नहीं सकते ना। In city after city, this is the story. पहले ज्यादा यूज करते सब्जी में, उसके बिना तो चलता नहीं है, तो कम मात्रा में यूज करते महंगाई की वजह से। टमाटो चाहिए तो आधा आधा लेना पड़ रहा है। बिल्कुल आधा लेना पड़ रहा है, जहाँ 5 किलो लेने का वहाँ 2 किलो से लेना पड़ता है, क्या करेंगे? Ask for an explanation at the mandis and these are the answers you'll get from Maharashtra to Madhya Pradesh. प्रॉब्लम वही जो अभी सूखा पड़ा है, किसानों के पास पानी नहीं है, जो टमाटर की आवक हो रही है मंडी में वो बहुत ही कम है। ये गर्मी के हिसाब से बिल्कुल आमदनी कम हो गई है यहाँ पे, और बारिश भी अभी लेट है और माल की आमदनी बिल्कुल कम हो गई है, इसके हिसाब से भाव बढ़ गए सब। But the numbers suggest otherwise. To understand what is pushing up the price of the tomato across India, we looked at the Agriculture Ministry's own website, which collates data of the arrivals in mandi of all important commodities. The results were surprising. When we compared the arrivals in mandis of tomatoes in India's biggest tomato producing states, we found that compared to last year, the numbers had actually increased in the month of May, just at the time when prices were going through the roof. In some cases, almost 2 to 4 times higher levels of arrivals. In Andhra Pradesh, one of India's biggest tomato producing states, 14,000 tons arrived in May 2015 at the mandis. This year, 20,400 tons. In Telangana, from 4,900 tons to almost 12,000 tons. Maharashtra, from 34,000 tons, the figure going up to 1.26 lakh tons. The only major tomato producing state where it has dropped is Karnataka. In May 2015, 22,500 tons of tomatoes reached the mandis in Karnataka. It dropped to 15,600 tons in May 2016. But it is not such a dramatic drop as to merit soaring prices in other states. Despite this, key cities connected to the mandis have seen a sharp rise in tomato prices as compared to last year. In Hyderabad, the price 28 rupees per kg last year jumps up to almost 56 rupees. Also doubling the price in Mumbai. Chennai sees a jump of almost 3 times. And Bengaluru again 3 times, rising from 22 rupees kg tomatoes last year to 57 rupees this year. To make matters even more baffling, the government has actually projected an increase in tomato production this year, up 18 million tons from 16 million tons last year, suggesting that despite bad weather, the Indian farmer appears to have ramped up capacity, which still doesn't answer the mystery as to what led to the dramatic surge in tomato prices. So what explains this contradiction? In Andhra Pradesh, they insist that there's been a crop shortfall and that the tomatoes are coming in from other states, and hence the numbers look healthy. And now the crop that is coming in from the northern states has actually helped to stabilize prices, you would say? Yes, exactly. The prices are less because the arrivals are coming from the north. The head of the All India Vegetable Growers Association had his own explanation. First, he told us that the government data may be wrong. गवर्नमेंट का खुद का आंकड़ा हो सकता है, उन्होंने जो इकट्ठा किया है महाराष्ट्र, टोटल महाराष्ट्र से किया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये फिगर उनकी सही है, क्योंकि मई में मैं आपको बोल सकता हूँ 14-15 में 6,50,000 क्रेट हमारी अराइवल था, 15-16 में 1,32,000 था, और 16-17 में देखो खाली 15-16 में 13 लाख प्लास्टिक क्रेट जो 20 kg के 13 लाख की आवक थी. But later he admitted that rumors too could be a factor.
और रूमर आप जो बोल रहे हैं मिडलमैन जो रिटेल ऑर्गेनाइज रिटेलर्स है, एपीएमसी जो है, उसका वो फ़ायदा ले रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और वैसे तो दूसरी रीजन ही उसमें ये है कि महाराष्ट्र में सच्ची में महाराष्ट्र में टमाटर का प्रोडक्शन वैसे तो कम है। मई में खाली 7 लाख क्रेट अराइवल है मई में। We tried to ask the agriculture minister about the paradox of a glut in mandis versus high prices. This was his response. टमाटर का मार्केट में पिछले साल की तुलना में ज़्यादा अवेलेबिलिटी है जो मंडी का ये आया है, उसके बावजूद जो दाम इतना बढ़ा हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? देखिए, इस पर हमारे केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री ने विस्तार से बताया है और आपके टेलीविजन पर भी एक खबर आया है। आपके हिसाब से क्या? मेरे हिसाब से वही जो हमारे फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर ने बोला है। तो एक बार रिट्रेट कर दीजिए। मैं बता रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इस पर विस्तार से मेरे फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर ने कल दिल्ली में बताया और आपके टेलीविजन को भी बताया। The crisis of high dal prices, however, is based on a genuine shortage, unlike the tomatoes, except that it also can't be blamed on drought alone, though drought has been somewhat of a factor. That's because the dal shortage has been brewing for years, a result, some say, of the government's inability to promote this important protein. Let's look at the data. Since the past 10 years, the acreage under dal cultivation has barely increased from 23 million hectares to 25 million hectares, which is just an increase of only over 7.5%. Also, if you look at dal production, that's increased only by 16.5%, while dal consumption has increased by a huge 103%. The reasons for these gaps are many, one of which, of course, is that the government announces a support price for dal but does not have the mechanism to procure it. This leaves farmers little choice to either turn to other crops or sell their dal in private mandis, as we found in Marathwada, which is one of the biggest dal centers of India. अब उसका बताइए, जैसे आपने दाल लगाया, तुअर का और उड़द का पर एकड़ खर्चा एक क्रॉप का 15,000 के आसपास है। पर एकड़ आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है? तो पर अंदाजा दाल, सर, तूर, उड़द वगैरह के आसपास। It is about 5 to 10,000 rupees. Yes, and investment is 15,000, and we get a mere 5 to 10,000 rupees per acre. Profit? Yes, profit. अच्छा. We invest 15,000. Okay. उसके बाद में जो फसल आती है, हाँ. तो वो अगर उसका कैलकुलेशन किया जाए तो 1 एकड़ में 4 क्विंटल तुअर होती है, 1 एकड़ में 4 क्विंटल उड़द होता है जी। लेकिन उसका जो लमसम अमाउंट आता है, हाँ। और मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत है, तो वो जो पैसा आता है वो बहुत कम है। आपको प्रॉफिट कितना मिलता है? प्रॉफिट मार्जिन्स आर जस्ट मेयर 10 to 20% in pulses. The mandi at Sholapur, the nerve center for farmers across this region. Here, whatever dal has survived the drought has arrived at the godowns of traders. Prices of dal in cities is shooting through the roof. But traders explain why farmers do not get its benefits. फार्मर्स का तो न्यू क्रॉप जब आता है तो 2 महीने में उसका माल वो पूरा सोल्ड आउट करके कैश ले लेता है। उसके बाद में बड़े बड़े स्टॉकिस्ट के पास वो माल रहता है, वो लोग तेजी बंदी करते हैं। अच्छा, तो उनके पास जैसे बल्क में 10,000 टन 20,000 टन माल स्टॉक कर देते हैं, मार्केट में तेजी ले आते हैं, तेजी ला के फिर वो कैपिटलिस्ट जो रहता है वो लोग कमाते पैसा, फार्मर्स को एक्चुअली कॉस्ट वही मिलती है। आप भी तो कैपिटलिस्ट हुए। हम कैपिटलिस्ट है, पर जो हमारा बहुत लिमिटेशन रहता है। At the mandi, they say the government, even though it announces a minimum support price, is rarely seen. सरकार की तरफ से कोई उनका बंदा नहीं आता यहाँ पे, और कुछ उनका इंटरफेयर नहीं रहता, खाली पेपरबाजी रहती है कि हमने ये रेट डिक्लेयर कर दिया, हमें वो रेट एक्चुअल मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। वो उनका कोई यहाँ कभी प्रेजेंस नहीं रहता है। यहाँ पे उनका कोई प्रेजेंस नहीं रहता। Joining us now, exclusive on NDTV, the Food Minister of India, Ramvilas Paswan. Thank you very much indeed, sir, for joining us. पासवान जी, ये बताइए सबसे पहले टमाटर का सवाल कि टमाटर जो हम आंकड़े देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रहे हैं पिछली बार की तुलना में, लेकिन तब भी दाम इतने हाई क्यों हैं? हमको भी आश्चर्य लग रहा है कि प्याज जो है पिछली साल पैदावार हुआ था 193 लाख टन, इस साल हुआ है 202 लाख टन। आलू पैदावार हुआ था 421 लाख टन, इस बार पैदा हुआ 456 लाख टन।
टमाटर जो है पैदा हुआ था 174 लाख टन और इस बार पैदा हुआ है 181.65 लाख टन। तो मतलब पैदावार में वृद्धि हो रही है, कोई मान लेते हैं कि कोई खपत में ज़्यादा चेंजेज नहीं आया है। तो उस परिस्थिति में मान लेते हैं दाम बढ़ने का हमको लगता है कि दो चीज़ हो सकती है। एक तो अब्बा है। जहां तक दाल का सवाल है रामविलास जी, जो हम देखते आ रहे हैं, आंकड़े भी बता रहे हैं कि दाल की प्रोडक्शन गिर रही है बिकॉज आप उनको पूरी तरह से प्रमोट नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। नहीं, दाल की प्रोडक्शन बढ़ नहीं रही है बल्कि दाल का प्रोडक्शन कम हुआ है। चूंकि उसका कारण है, उस एक तो सबसे बड़ा कारण है कि जो मौसम है, जो पिछले 3 साल का आप यदि देखेंगे तो लगातार क्या कहते हैं कम बारिश के कारण जो है ये पैदावार कम हुई है। इस बार पैदावार हुई है 170 लाख टन, इसके 1 साल पहले पैदावार हुई थी 171 लाख टन, उसके 1 साल पहले पैदा हुई थी 173 लाख टन। और दूसरे तरफ में जो हमारा डिमांड है वो बढ़ता जा रहा है। पासवान जी, यहां पर कहा जा रहा है कि भारतीय किसान जो दाल पैदा करता है उसकी हालत खस्ता है, खराब है, और आप इसकी जगह आप अब बाहर की कंट्रीज, मोजाम्बिक जो अफ्रीका में है, म्यांमार में जाके वहां पर भारत जमीन लेके दाल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए फार्मिंग करें या उनसे लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करें। हमारा एक टीम जो है वो जो कि मोजाम्बिक जा रहा है, दूसरा टीम म्यांमार जा रहा है, एक हमारे सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो है वो टीम जा रही है 22-23 को, और जो है 1-21-22 को जो है हमारा जो इकोनॉमिक एडवाइजर है उनके अध्यक्षता में जा रही है, जिसमें कॉमर्स डिपार्टमेंट के भी हैं, एग्रीकल्चर के भी हैं, MMTC के भी हैं। बट क्या इन कदमों से इंडियन फार्मर को नुकसान नहीं होगा? भारत ही दाल का पैदावार करता है और भारत ही दाल को खाता है। जहाँ तक सवाल है दूसरे देशों का, वहाँ दाल जो है नहीं के बराबर खाया जाता है। भारत में क्या कहते हैं कि जो किसान हैं वो जितना भी खरीद बेचना चाहें, हम तो अपील करते हैं किसान से कि वो दाल का पैदावार के दाल के तरफ में ध्यान दें। सरकार ने MSP इतना बढ़िया किया है कि पिछले 2 साल में 450 और 275 मतलब 700 रुपया जो है हमने बढ़ाने का काम किया है। पब्लिक जो है, हम आम जनता से अपील करेंगे कि वो खरीद करें। लेकिन यदि मान लेते हैं कि हमारे पास में पैदावार कम होता है और हम इंपोर्ट भी नहीं करेंगे तो आप समझ जाइए कि दाम कहाँ चला जाएगा।